حاضرین محترم، عید الاضحیٰ کا یہ اجتماع اسلامی تاریخ کا ایک عظیم الشان اجتماع کی شکل رکھتا ہے۔ حج کا یہ موقع جب پوری دنیا کے مسلمان اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ وہ ایک دین کو ماننے والے ہیں، ایک اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، ان کے اندر اجتماعیت ہے، وہ رنگ، نسل اور اس طرح کی کسی بھی چیز کا بھید بھاؤ نہیں رکھتے، اس کا پورا ثبوت دیتے ہیں۔ اور اس اجتماع کا جو پہلا کردار ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ یہ باپ بیٹوں کا ایک ایسا رشتہ ہماری اسلامی تاریخ میں موجود ہے جو اپنے تمام مندرجات کے ساتھ عجیب و غریب ہے۔ ایسا کردار، ایسا احساس، ایسا عمل جس کی کوئی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ یہ ایک باپ اور بیٹے کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ اس باپ اور بیٹے کے تعلقات کو بنیاد بنا کر میں آپ کے سامنے کچھ بنیادی باتیں رکھنا چاہتا ہوں جو والدین اور بچوں سے تعلق رکھتا ہے۔ آج حالات اتنے خراب ہیں کہ ہر باپ اپنے بچوں سے پریشان ہے اور ہر بچہ اپنے والدین سے پریشان ہے۔ سب ایک دوسرے سے شاکی ہیں، کسی کو کسی پر اعتماد اور اطمینان نہیں ہے۔ آج دنیا میں یہ چیز اختیاری ہے کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ چاہے تو آخری عمر تک نبھائیں، ورنہ چاہے تو بیچ میں ترک کر دیں۔ ابھی ہمارے بزرگ دوست جلد ہی تشریف لائے تھے، انہوں نے دلی کے ایک آشرم کا واقعہ بیان کیا کہ اس آشرم میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہر قوم کے لوگ اپنے باپ کو لے جا کر کے وہاں ایڈمٹ کرا دیتے ہیں۔ اچھے خاصے مسلمان، پیسے والے مسلمان آتے ہیں، اپنے بچوں، اپنے والدین کو، ماں باپ کو یہاں ہمارے سپرد کر دیتے ہیں اور پھر ان کی دیکھ ریکھ کرنے یا ان کی خبرگیری کرنے کبھی نہیں آتے۔ ایسے بھی وہاں ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ قرآن کریم نے اسلامی معاشرے میں ماں باپ اور بچوں کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ کچھ الگ ہے۔ آج میں اسی کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ ہمیں اور آپ کو احساس ہو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کرنا کیا ہے۔ ہم اپنے تعلقات کو بہت حد تک باپ بیٹے تک ہی محدود کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم اس کو اس سے آگے بڑھا کر پوتے پر پوتے، دادا پر دادا تک لے جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً، کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں میں تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے بنائے اور پوتے بنائے، حفدہ، پوتے بنائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پوتوں تک اپنی بات کو پہنچاتے ہیں۔ یہ سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے۔ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو دین کی نصیحت کر رہے ہیں۔ قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بِبَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، کہ ابراہیم نے اسی دین کی نصیحت اور وصیت اپنے بیٹوں کو بھی کی اور یعقوب کو بھی کیا۔ یعقوب ان کے پوتے تھے۔ یعنی یہ تعلیم کا سلسلہ صرف باپ بیٹے تک ہی نہیں تھا، پوتے تک منتقل ہوا اور پھر یہی سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام جب آخری وقت میں اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، یہ میرے بیٹو میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے جو جواب دیا قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا،
बेटों ने, याकूब के बेटों ने कहा कि हम इबादत करेंगे ऐ अब्बा जान आपके माबूद की, आपके बाप इब्राहिम के माबूद की, इस्माइल के माबूद की, इसहाक के माबूद। यानी पर पोते को याद है कि मेरे बाप की तालीम क्या है, मेरे दादा की तालीम क्या है, मेरे परदादा की तालीम क्या है। याकूब के बेटे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पर पोते थे, यानी वो अपने पूरी नस्ल की तालीम को याद रखे हुए। ये सूरत हाल है कुरान करीम के अंदर बाप बेटों की। हमारा मामला ये है कि अगर हम बहुत हद तक खींचतान के अपने ताल्लुकात ले गए तो बेटों तक ले गए, पोतों पर तो लास्ट ही है। लुकमान हकीम के बारे में आता है कि उन्होंने अपनी औलाद को नसीहत की कि बच्चों बुजुर्गों की सोहबत अख्तियार करना, क्योंकि इससे तुम्हें वो सारे तजर्बात मुफ्त में मिल जाएंगे जो उन्होंने कुर्बानियां देकर, ठोकर खाकर, पैसे खर्च करके हासिल किए। लेकिन भाइयों ये एकतरफा तालीम थी। ये तालीम भी होनी चाहिए थी कि बापों को कि वो अपने बच्चों के साथ उस तरह से जुड़ कर रहें कि वो अपने तजर्बात शेयर करें। हर नस्ल अपने अहद की पैदावार होती है और अपने अहद की तालीम से लैस होती है। आज टेक्नोलॉजी का अहद है, आज नई नस्ल टेक्नोलॉजी की माहिर है, हमारे बुजुर्ग नहीं माहिर। तो हर नस्ल, हर कौम अपनी अपनी एक खुसूसियत लेकर रखती है, सबको एक दूसरे के साथ जुड़ना है। ये मामला है बाप और बेटे के शेयर का। कुरान करीम में दो बेटों का तस्करा है और बड़ा अजीबो गरीब है। एक बाप अपने बेटे से कहता है कि बेटा मुझे इशारा हुआ है, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़ब्ह कर रहा हूं। बेटा कहता है कि अब्बा जान इफ़अल मा तुमर, मैं हाजिर हूं, जो हुक्म मिला है आपको कर डालिए। एक बाप अपने बेटे की जान लेना चाहता है और बेटा अपने आप को पेश कर देता है। इसी के बरक्स एक दूसरा बाप है जो अपने बेटे को कह रहा है कि बेटे कश्ती में आ जाओ, बच जाओगे, तुम्हारी जान बच जाएगी, महफूज हो जाओगे। लेकिन बेटा कहता है कि नहीं, मुझे आपके साथ नहीं आना, मेरी जान चली जाए मुश्किल नहीं, मैं आपके साथ कश्ती में नहीं आऊंगा। दोनों नबी हैं, नबी जैसा मुरब्बी कोई नहीं हो सकता। लेकिन एक बाप, एक बेटा अपनी जान देने के लिए अपने आप को पेश करता है और दूसरा बेटा अपनी जान बचाने के लिए अपने आप को पेश नहीं करता है। एक हज़रत नूह के बेटे की मिसाल है, एक हज़रत इब्राहिम के बेटे की मिसाल है। ऐसा क्यों हुआ, ये एक राज है, मैं अभी बताता हूं। ये ताल्लुक है, यही ताल्लुक एक दो जगह नहीं है। कुरान करीम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जब मिसाल देता है तो बाप बेटों का वो रिश्ता सामने आता है जो हम ख्वाब में नहीं सोच सकते। एक बेटा ख्वाब देख रहा है और अपने बाप से कहता है कि अब्बा जान मैंने कुछ ख्वाब देखे हैं कि मुझे 11 सितारे और चांद और सूरज सजदे कर रहे हैं। बाप उसका ख्वाब सुन करके ये नहीं कहता है कि तू ऐसा ही उल्टा पलटा देखता है, बल्कि उसके साथ बात करता है, उस पर तबसरे करता है, कुछ मशवरे देता है। यानी वो रिश्ता है वहां कि बाप अपने ख्वाब को बेटे से कहता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपना ख्वाब अपने बेटे से कहते हैं और एक बेटा अपना ख्वाब अपने बाप से कहता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने अब्बा से कहते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि आपके बेटे ने कभी ख्वाब देखा हो, आपसे कहो? आपने कभी ख्वाब देखा है अपने बच्चों से कहो? हम तो, हमारी सूरत हाल ये है कि हमको तो ये फिक्र ही नहीं होती कि हमारे बच्चों के भी कुछ ख्वाब होंगे, उसकी कुछ ख्वाहिशात होंगी, उसकी कुछ तमन्नाएं होंगी। हमने तो इस पर कभी नहीं गौर किया। हाँ, ये है कि हमारा ये ख्वाब है कि मेरा बेटा ये बन जाए, अब उसके ऊपर उसको थोप देते हैं, चाहे वो आखिर में बर्बादी हो जाए। लेकिन अच्छे बाप आप देखते हैं, बच्चों को दिखाने की भागते भी हैं, ऐसे ख्वाब दिखाते हैं। आप दो तरह से देखे जाते हैं। एक तो ये कि आदमी
एक उसको देखने के लिए सोना पड़ता है, और एक ये है कि जिसको देखने के बाद आदमी सोना छोड़ देता है। एक अच्छा बाप अपने बच्चों के ताल्लुक से ऐसे किरदार का हामिल होता है। इसके अलावा भी कुरान करीम ने कुछ ऐसे नज़ायर पेश किए हैं रिश्तों के, जिसको आप सुनकर के हैरतज़दा हो जाएंगे कि क्या ऐसा होना चाहिए। मिसाल के तौर पर बाप और बेटों में कुर्बत का ताल्लुक होना चाहिए, माइयत का ताल्लुक होना चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया गया, इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में, फलम्मा बलगा माहु साया काला या बुनैया, कि जब वो अपने अब्बा के साथ चलने फिरने की उम्र का हुआ, यानी इब्राहिम और इस्माइल का ताल्लुक एक साथ का था। बहुत सारे सफर हुए हैं, लेकिन अक्सर औकात दोनों के साथ में रहे हैं और आपस में बातचीत हुई। काला या बुनैया, कहाँ है मेरे बेटो, उसके बाद कुछ तालीमात दी। इसके अलावा मुश्तरका मैदान अमल मिलता है कुरान करीम में बाप और बेटों का। वही यरफो इब्राहिमुल कवाइद मिनल बैत व इस्माइल, खाने काबा बेआबो गया मैदान में तैयार हो रहा है, कोई नहीं है, एक बाप बूढ़ा है और एक जवान बेटा है। इब्राहिम इस्माइल मिल करके उठा रहे एक ऐसा घर जिसको हजारों साल तक चलना है, क़यामत तक चलना है। ये मुश्तरका अमल है। एतमाद कितना रहा है ये देखिए। मूसा अलैहिस्सलाम को उसकी वालिदा ने संदूक में बंद किया और दरिया में डाल दिया, और अपनी बेटी से कहा कि बेटी अब ये तेरे हवाले, छोटी सी बेटी है, बहुत बड़ी नहीं है। उसने बस इतना कहा, कालत ले उख्ती कुस्सी, ऐ बेटी ये तेरे हवाले, यानी मूसा की बहन के हवाले कर दिया उसकी मां ने। और आप हैरत करेंगे कि वो एक नन्ही सी बच्ची ने क्या किरदार अदा किया। उस नदी के किनारे 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 पहुंच गई फिरौन के घर, वहां पर संदूक निकाला गया, मूसा बच्चे हैं। फिरौन के घर में उस मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक बहुत सारी बातें होती हैं, पालने पोसने की बात होती है। ये बच्ची वहां जाती है और कहती है कि मुझे पता है, मुझे एक तजर्बा है कि इस बच्चे की परवरिश फला जगह जो है बेहतरीन हो जाएगी, और इस तरह से उसने उस अपने भाई को अपने घर लेके चली आई। ये एतमाद किया उसकी मां ने उस छोटी सी बच्ची पर। आज हमारा एतमाद तो 10 रुपया देकर दुकान भेजने पर भी नहीं, 100 रुपया दे करके मदरसे में फीस भेजने का भी एतमाद हम बड़ी मुश्किल से करते हैं कि खो देगा। ये तजर्बात हैं जो आपको सिखाने हैं बच्चों को। 100 रुपया गंवा दे, मुश्किल नहीं है, 2 बार गंवाएगी, 4 बार गंवाएगा, फिर उसके बाद उसको सीख आ जाएगी कि कैसे पैसों कैसे महफूज किया जाता है, वरना जिंदगी भर वो आपका मुहताज रहे। कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, कोई बड़ी सोच नहीं पैदा हो सकती। इसके अलावा एक फिक्री अमल है। दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने एक मुकदमा है, खेती का एक मुकदमा है। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने सुलेमान को उसका फैसला, उसका सही नतीजा सुझा दिया। बाप दाऊद है, बेटा सुलेमान है, दोनों बादशाह हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस फैसले में सही फैसला दिया। बाप को कोई टेंशन नहीं हुआ कि ये क्या हो गया, मैं बाप हूं, मुझे ये सोचना चाहिए था। नहीं, उसने तारीफ की, तरजीह दी और सलाहदाई की, क्योंकि एक अच्छा बाप ऐसे ही करता है, एक अच्छा बुजुर्ग ऐसे ही करता है, एक अच्छा कायद ऐसे ही करता है। लेकिन हमारी सूरत हाल ये है कि हम अगर किसी मसलत पर बैठ गए तो चाहते हैं कि जिंदगी भर हमारा ही चले, कोई हमको मशवरा न दे सके। कोई बेटा अगर मशवरा दे दे अपने बाप को तो इस बात पर तैयार नहीं होता कि संजीदगी से गौर करे। और बचपन में वो हमसे पूछता है ये कैसे है, वो कैसे है, ये क्या है, वो क्या है। बच्चे के अंदर एक फितरत, एक जिबिल्लत है सीखने की, और बाप उसका मुअल्लिम और मुरब्बी है। बाप नहीं बताता, कहता बाद में, चलो हटो, फुर्सत नहीं है। और फिर वो बेटा सवाल
औलाद लेकर के दूसरों के यहाँ जाता है, फिर ऐसी जगह से वो सीख के आता है जहां हम और आप नहीं चाहते। ऐसा कुछ सीख जाता है जो आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होता, लेकिन फिर वो आपके हाथ से मौका निकल चुका होता है। फिर आपके जिम्मे सिर्फ रोना धोना ही रहेगा कि मेरे बेटे ने क्या सीख लिया, क्या समझ लिया। सूरत हाल ये है कि एक बाप जाता है नमाज के लिए, बेटा उसका आवारागर्दी कर रहा होता है, घूम फिर रहा होता है, एक बार हिम्मत नहीं होती पूछ ले, और अगर एक बार पूछ भी लिया तो दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं होती, कहीं मजीद रुसवाई का सामना न करना पड़े। ये सूरत हाल है। ऐसे बाप और बेटे दुनिया में कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ये जमीन के लिए सिर्फ बोझ हो सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। बड़े काम के लिए बड़ी सोच, बड़ी कुर्बानियां, बड़ा फिक्र रखना पड़ेगा, वरना जिंदगी भर यही सोचते रह जाएंगे कि चमड़ा किस मदरसे में देना, नमाज किसके पीछे होगी। यही सब छोटे छोटे मसाइल, गैर जरूरी मसाइल में आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। कोई बड़ी फिक्र नहीं आ सकती कि कौम की तरक्की कैसे होगी, कौम कैसे आगे जाएगी। ये सब सोचने के लिए इस तरह के काम, तो इसमें आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने औलाद के साथ वक्त दें, उनकी सही तरबियत की फिक्र करें, खुद सीखें सिखाएं, उनके किसी भी सवाल को अवॉइड न करें। एक इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड होना चाहिए जहां इल्मी बातचीत हो, वक्त निकाल करके कुछ हंसी मजाक हो, छोटों को छोटा न समझा जाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे से बच्चे इब्ने अब्बास को ऐसी तालीम दी कि बड़े बड़े मुफक्किर और फलसफी नहीं दे सकते, छोटा सा बच्चा था। आपने भी कभी नहीं सोचा कि बच्चा है क्या करेगा, तो ऐसा नहीं सोचना है। सब बच्चे अपनी जगह मुकम्मल हैं, उनके साथ आपका ताल्लुक मजबूत होना चाहिए, और यह कुर्बानी का मौका है। आप सब लोग अल्लाह के नाम पर कुर्बानी कीजिए, फक्र मबाहात इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। सबके यहाँ गोश्त पहुंचे, सब एक दूसरे को तकसीम करें, और इसी मकसद के पेश नजर हमने भी 2 जानवर का इंतजाम किया है इदारे में। जो लोग कुर्बानी नहीं कर सके हैं, जिनके यहाँ गोश्त कम पहुंचेगा, वो उनके लिए फ्री है, वो सारा जानवर अपने घर ले जाए, कुर्बान हो जाएगा। 2 जानवर, बड़े जानवर का इंतजाम किया गया है, तो सारे लोग गोश्त खाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें। और आपका जो चमड़ा वगैरह है वो आप मदरसे को भेज दें। बहुत सारे गरीब बच्चे आपके इस पैसे से पढ़ लेंगे। हमारे पास 60-70 के करीब दरखास्तें अब तक आ चुकी हैं, वो फीस माफी के लिए, किताबों के लिए और सारी के लिए, और इस तरह भी अभी इम्कान है। तो आप सब लोग ताउन कीजिए, मिलजुल के रहिए, किसी इज्तिमाइयत के लिहाज कीजिए, किसी तरह की मसलकी और फिरकावाराना गुफ्तगू न होने पाए। ये सब चीजें स्टेज की बयान करने की चीज नहीं है कि फला मसलक वाले ऐसे हैं, फला जमात वाले ऐसे हैं, फला ऐसे हैं। सबको समझिए, सबके अंदर गलतियां हैं, कोई दूध का धुला नहीं है, नबी कोई नहीं है। सब एक दूसरे को ताउन कीजिए, इंसानियत को शर्मसार मत कीजिए। ये त्योहार ईद और बकरीद का दरअसल यही तालीम देता है। खाने काबा के अंदर 13 से 14 लाख लोग मौजूद हैं, वो यही साबित कर रहे हैं कि यहाँ न कोई काला है, न कोई गोरा है, न कोई छोटा है, न बड़ा है, न अमीर न गरीब, सब एक हैं, एक इलाह वाहिद के बंदे हैं। यही आपको दुनिया में भी साबित करना है, घर पे गांव में भी यही साबित करना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुर्बानी के मकासद और उसके किरदार को इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।